Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. My name is Abu Bakr Khan and welcome back to my YouTube channel. आज यहाँ यूक्रेन के अंदर ईद है, तो अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर। मैं आपको सब दिखाता हूँ वहाँ पे। बाय द वे, ऑल थैंक्स टू अल्लाह। आज मैं सलातुल ईद को लीड कर रहा हूँ। आई एम द इमाम टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद पहुँच के सब चीज़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। भाई, ये दो नौजवान जा रहे हैं। सुबह का अंधेरा है। ये क्या बोला है मैंने? सुबह का अंधेरा नहीं, मतलब सॉरी भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा अभी रात का अंधेरा छटा नहीं, धीरे धीरे उजाला हो रहा है। मैं आ गया हूँ मस्जिद में और अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। एक तो ये बोर्ड प्रिपेयर करना है, बलून्स को फुलाना है ताकि एक डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकें, और इसके बाद जो हदिया हमें देना है हमें उसके पैकेट्स भी प्रिपेयर करने हैं। एंड वी जस्ट हैव 1 hour, वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन बिटवीन दैट। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं काम को और आपको डायरेक्ट नमाज की जगह पर मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ, फजअलहु गुसाअन अहवा, सनुक़रिउक फला तंसा, इल्ला मा शाअ अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा, वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, वयतजन्नबुहल अश्क़ा, अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा, ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف العلى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين إمام الأنبياء إمام الكائنات خاتم النبيين إمام أعظم سيدنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Почему они отмечают эти 2 дня? Они ответили, что в эпоху неведения, джахилии, они праздновали эти 2 дня. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал: Аллах дал нам 2 дня радости взамен 2 дней из джахилии. И эти 2 дня радости, Яум аль-Адха и Яум аль-Фитр. Яум аль-Адха — это день жертвоприношения, который является 10-м днем Зуль-Хиджа. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My dear brothers and sisters, first of all, I want to congratulate you all. Eid Mubarak with my heartfelt congratulations. My dear brothers and sisters, before we go into the details of this speech, I would like to make you understand why do we celebrate Eid and what is the purpose of Eid. There's hadith in Abu Dawud, Sunan Nisai, Al-Mustad al-Hakim. Anas ibn Malik Razallahu Ta'ala who said that when the companion of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and Rasulullah himself migrated to Medina, the people of Medina used to celebrate 2 days as festivals. When Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asked them why they celebrate these 2 days, they replied that during the time of ignorance, during the days of ignorance, or in Arabic Jahiliyyah, they used to celebrate these 2 days as the festivals. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam responded to that, Allah has given you 2 days in exchange of those 2 days of Jahiliyyah, 2 days of happiness in the exchange of 2 days of Jahiliyyah. And we don't know that whether we're gonna see the next Ramadan or no, because nobody knows when they're gonna die. Nobody knows when the Malakul Maut can visit them. So we don't know when whether we're gonna see the next Ramadan or no. So it might be that this is our last Ramadan. So we should be aware of this thing, that whatever we gain from the month of Ramadan, we should continue this act throughout the year, so that if we die as a Muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. That do not die but a Muslim. And I want to also mention this thing, but like right now we are celebrating here the festival of Eid. But do not forget about our brothers and sisters in Palestine. The people are still mourning there. Someone has lost their children, somebody lost their parents, somebody lost their husband, somebody lost a brother. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من السماء
हेलो गाइस, अरे कैसे ले जाए तो ईद की नमाज के बाद हम सब लोग ऊपर गए और ऊपर जाकर हम सब लोग बैठे, बातचीत करी और चाय वगैरह हम सब लोगों ने पिए। तो कुल मिलाकर काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज अ इमाम ऑल्सो और एज अ मुस्लिम ब्रदर ऑल्सो। अच्छा, उशगुरोत के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको साकुरा और बहुत प्यारे प्यारे से फूलों वाले पेड़ आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट के रास्ते में एक समझ लीजिए आप पूरी इन्होंने लाइन लगा रखी है साकुरा और अदर जो और दूसरे जो पेड़ हैं उनकी। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं अपने अपार्टमेंट वापस आ गया हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी देर सो जाता हूँ, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ काफ़ी देर से। रात में मैं पूरी तरीके से नींद नहीं ले पाया था, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद उठकर देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं उसके पास। 3 hours later. Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Once again, welcome to my YouTube channel. मैंने जैसा बताया कि मैं ईद की नमाज के बाद सो गया था और मैं अभी उठा हूँ, तो मैंने प्लान किया है कि मैं थोड़ा वॉक पे जाऊँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी सेंटर। यहाँ पर जो ईद है यूजुअली अप्रैल के अंदर मैंने देखी है, क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था वॉर के बाद, तो उस टाइम पे यहाँ पे ईद अप्रैल में हुई थी। तो अप्रैल में क्या है ना कि जो स्प्रिंग है वो प्रॉपरली आ जाता है और उसकी वजह से जितने भी यहाँ पे ग्रीनरी है या फिर पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है उसमें, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, द ब्लू बेसिकली, मुझे हिंदी में वर्ड नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं। सो एनीवेज, तो अभी फिलहाल जो कुछ है जितना भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देयर आर फ्यू trees, like for example this one behind me, it's pink sakura, and there are other sakuras also in center. I'll show you if they bloom by now. अभी यूक्रेन के अंदर वेदर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बस यहाँ पर अब सुबह शाम की ठंड रह गई है। दिन के अंदर यहाँ पर मौसम 15 या 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो ज़्यादा हैवी क्लोथिंग की अब ज़रूरत रही नहीं है। अगर हल्की सी जैकेट भी हो तो काम चल जाता है यहाँ पर।
the main thing that I like about Ukraine and Uzhgorod, यहाँ पर आपको सब जितनी भी सिटीज़ हैं उनका आर्किटेक्चर और उनका एक जो इन्होंने सिस्टमिकली हर चीज़ को बनाया हुआ है. फॉर एग्जांपल हर शहर के बीच में एक सेंटर होगा. अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिवर है तो प्रॉपर एक वॉकिंग स्पेस है. हर शहर में होता है कि आपको वॉकिंग के लिए एक अच्छे से जगह. आई अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ड्यू टू पॉपुलेशन रीजंस, बट अगर हम कोशिश करें तो ये चीज़ें हो सकती हैं. मैनेजेबल हैं ये सब चीज़ें कि हम एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक लोगों को यूरोपियन लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लग्जरी एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ द पीस. यहाँ पे जितना आपको सुकून और एक यहाँ पे जितना आपको सुकून वाला मामला दिखता है इतना आपको और कंट्रीज में नहीं होता. जितना ज़्यादा किसी कंट्री के अंदर, मैं इंडिया से हूँ और मुझे मालूम है कि इतना शोर शराबा, ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ सुनना, इसकी एक आदत हो जाती है. लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे वो चीज़ अजीब लगने लगी थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया मुझे सब चीज़ें ऐसे सुनसान, जल्दी सब चीज़ें बंद हो जाना, लोगों का घरों में चले जाना. इंडिया में ऐसा नहीं था. लेकिन जब मैं धीरे धीरे यहाँ रहने लगा, मुझे 2 साल हो गए, अब मुझे एहसास होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. So I was saying कि इंडिया के अंदर जो है इतना शोर शराबा है, ट्रैफिक का शोर और काफ़ी चीज़ें हैं जो एक मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है. आई एम नॉट गिविंग एनी हेट टू माय कंट्री, आई लव माय कंट्री, बट दीज आर द फैक्टर्स कि हम जिसको डिनाई नहीं कर सकते. इसी की वजह से जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंडिया छोड़ के जाते हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके रहते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़. हम कितना भी इस चीज़ को डिनाई कर दें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपनी हर खामी के बावजूद ये चीज़ तो है कि यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर पीस है, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं. यूक्रेन एक वॉर जोन कंट्री है फिलहाल, और उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है, के अलावा जो एरियाज है जिनमें वॉर चली, उनके जो अलावा जो एरियाज हैं उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने सारी पीस मेंटेन करके रख रखी है, वो तारीफ के काबिल है. वजह उसकी है कि अगर आप इंडिया के बारे में चीज़ें सोचो तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि इंडिया में इस तरह मैनेजमेंट किया जा सकता है. यहाँ के रोड्स, यहाँ की स्ट्रीट्स, यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, ये लोग उस चीज़ की केयर करते हैं. इंडिया में मैं ये चीज़ बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमें ज़रा सा भी सिविक सेंस नहीं है, हमें खुद को ही तमीज़ नहीं है कि हम लोग कैसे अपनी कंट्री को साफ रख सकते हैं. हमने जहाँ देखा वहाँ कूड़ा फेंक दिया, जहाँ देखा वहाँ थूक दिया, हर दूसरी दीवार पे, यहाँ तक कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, हमने वहाँ उनकी दीवारों तक पे हमने थूक रखा है. पान, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें. हमें ये चीज़ें खुद ही देखनी चाहिए कि हमें ये चेंजेस खुद में लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी कंट्री सुधरेगी. और यार एक दूसरी चीज़ है कि अगर हम रूल्स को फॉलो करें ना खुद से, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पर्सनल लेवल पे काम करें, ना कि ये कहें कि पहले तुम करो, पहले तुम करो. What are you doing? Editing your picture. MashaAllah. Okay, so that's it for this vlog. I hope you like my vlog, and if you do, please give it a like. Do not forget to share it with your friends and family, and comment your favorite part. And also don't forget to subscribe to my YouTube channel, and I will see you in the next vlog.